Good morning, students. This is Vivekananda Pathak, and I welcome you all to my YouTube channel. And today we will learn exercise question answer of chapter 8 Land and the People of Social Science of Devi Public School. So let's know the question answer of D part that we have. Question number 1. What are the various uses of date palm tree for the inhabitation of the Sahara Desert? सहारा डेजर्ट में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ का जो मेन इम्पोर्टेंट ट्री है वह कौन सा है? डेट पाम। तो उसका अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं? द आंसर वी हैव दैट द डेट पाम ट्री आर using for the various purposes in the Sahara Desert for animals and humans. It is the common fruit here. The shape of date tree is used to make wine. The seeds of date fruit are crushed and used as fodder for the camels and goats. The leaves and trunk are also used for making baskets, ropes and doors, etc. This is the answer of question 1. Now second question we have that name the two types of desert according to their location zone. In the world, according to location, there are two types of desert, that is the hot desert Sahara, which is in North Africa, and the second one the cold desert, that is Ladakh in Jammu and Kashmir in India. It is the coldest desert of the world, and Sahara desert is the largest and the hottest desert of the world. Third question we have that name the important rivers found in the wild grasslands. Wild grassland, it is in Australia, and which rivers are following here? That is the Limpo and Orange are the important rivers found in the wild grassland. Fourth question we have that is why is Ganga Brahmaputra Delta known as the Sundarban? Dear student, it is the largest delta of the world. So Ganga Brahmaputra Delta is known as the Sundarban Delta due to सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन दिस रीजन। इस रीजन में सुंदरी नाम का एक पेड़ है जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। ड्यू टू दैट दिस डेल्टा नेम्ड एज द सुंदरबन डेल्टा। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव दैट इज mention the three layer of foliage of the equatorial forest. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं जो अमेजन बेसिन में है, दैट इज थ्री लेयर्स आर देयर। विच आर दीज आर कैनोपी, सर्ब्स and bushes are the three layer of the foliage of the equatorial forest. Dear students, so these are the 5 questions of D part. I would like to request you to subscribe my channel, share my channel and to click on bell icon. E-type question we have answer the following question. Question number 1, that what distinguish between Sahara desert and the Ladakh desert with respect to location, climate and vegetation. यहाँ पे हम सभी को सहारा और लद्दाख में अंतर बताना है। 3 बिंदुओं पर ध्यान देते हुए। कौन सा 3 बिंदु? दीज आर लोकेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। यू जस्ट सी द सहारा डेजर्ट, द लोकेशन ऑफ सहारा डेजर्ट, इट इज नॉर्थ अफ्रीका, इट इज लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशियन इन the west and Red Sea in the east, Mediterranean Sea in the north and huge mounds of sand dunes in the south. And the location of Ladakh, it is located in northeastern part of Jammu and Kashmir in India. And the climate of Sahara, it is hot and dry, and the climate of Ladakh, it is cold and low temperature, low humidity is there. Now the vegetation of Sahara desert, scanty vegetation or almost nil except near the Nile river. एक रिवर जो सहारा डेजर्ट में फ्लो करती है, दैट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, उस आसपास में कुछ वेजिटेशंस होते हैं। इसके बाद फिर और पूरी एरिया खाली होती है। द मैक्सिमम trees are there, the palm, cactus, etc. And in Ladakh desert also scanty vegetation, trees grows which require little water like willow trees. विल्लो ट्री जिससे क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। कॉमन एनिमल्स हेयर आर सीप, माउंटेन गोट, याक एक्सेट्रा। जिस माउंटेन गोट्स के हेयर से
पश्मीना जो एक एक्सपेंसिव शॉल है उसे बनाई जाती है ना। द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव दैट इज वाई आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन डिसअपियरिंग। इस रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन बेसिन में आज ये डिसअपियरिंग होते जा रही हैं, क्यों? व्हाट आर द रीजन्स? द आंसर इज रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन डिसअपियरिंग ड्यू टू द वेरियस रीजन्स। बहुत सारे रीज़न हैं जिसके चलते ये डिसअपियर हो रहा है। द फर्स्ट रीज़न दैट यू हैव टू लर्न दैट इज पीपल फ्रॉम यूरोप माइग्रेटेड टू साउथ अमेरिका और द अमेजन बेसिन। आज यूरोप के अधिकांश कंट्री के लोग माइग्रेट कर रहे हैं साउथ अमेरिका की ओर, जहां पर वो अपने रहने के लिए जगह बना रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिसके चलते वहां की फॉरेस्ट की एरिया डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन। एंड थर्ड वन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। फोर्थ इज फॉरेस्ट क्लियरिंग फॉर इंक्रीजिंग द cultivation area. These are the reason for the rainforest of Amazon basin disappearing. The third question we have, dear student, that is why is the density of population in Sahara desert low? आप बता सकते हैं कि सहारा डेजर्ट की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या की जो घनत्व है, बहुत ही कम है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, क्यों? The density of population in Sahara desert is very low due to the various reasons. अलग अलग कारण हैं। क्या कारण है डियर स्टूडेंट? आप बता सकते हैं। नंबर वन रीजन, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है? बहुत ही हॉट और ड्राई है। द डेज आर वेरी हॉट, टेम्परेचर राइज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं दिन इतनी गर्म होती है जहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाती है, तो यू कैन इमेजिन हाउ द पीपल कैन लिव देयर। इसके चलते लोग वहाँ पर रहना बहुत ही कम पसंद करते हैं। एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, इट डिक्रीजेज अप टू 10 डिग्री सेल्सियस। और रातें ऐसी होगी, ठंड हो जाएगी, 10 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे रह पाएंगे। दिन बहुत गर्मी होगी और रात बहुत ठंड हो जाएगी, तो ऐसे जगह पर लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, जिसके चलते वहाँ की जनसंख्या बहुत ही पतली होगी, बहुत कम लोग रहेंगे। सेकेंड है लो रेनफॉल। अब लो रेनफॉल होने की वजह से द एनुअल रेनफॉल इज बिलो 20 डिग्री सेंटीमीटर एंड विच इज वेरी वर्स्ट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब बारिश होगी ही नहीं तो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होंगे नहीं, कल्टीवेशन होगा नहीं, देन पीपल विल बी नॉट देयर। एंड द थर्ड इज ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट एंड cold, the plants and animals are not able to exit in this region. So these are the factors which responsible for the density of population in the Sahara desert. Fourth question, dear student, we have differentiate between prairies and the wild. वर्ल्ड में बहुत सारे घास के मैदान हैं, जो चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पर हम लोग को प्रेरीज ग्रासलैंड और वेल्ड ग्रासलैंड के बारे में बताना है, दोनों में अंतर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी प्रेरीज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट ड्यू टू देयर लोकेशन इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट के एकदम इंटीरियर पार्ट में है, जिसके चलते यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। बोथ ड्यूरेनल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर हाई। वहाँ पे दिन में भी और पूरे साल में भी एकदम टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। वेल्ड हैज मॉडरेट क्लाइमेट। अब वेल्ड में कैसा क्लाइमेट है डियर? वेल वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है टू द हायर एल्टीट्यूड एंड अप्रोक्सीमेटली टू ओशियन ऑन 3 साइड्स। Rainfall occur mostly during spring and summer, and summers are short and rainfall is low with the frequent droughts. The snowfall occurs during winter. Local Chinook wind from the Rockies and range temperature winter are long, cool and dry with the occasional frost. So these are the differences between prairies and the wild grassland. Now the fifth question we have, that is the last question for today, that is why is गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन थिकली पॉपुलेटेड। यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, और ये दुनिया की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, तो यहाँ पे अधिक लोग रहते हैं। क्यों? बिकॉज द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इज मैनली मेड of fertile alluvial soil which has
रिजल्टेड इन इंक्रीज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यहाँ की जो मिट्टी है वह कैसी है, अलुवियल सॉइल है और बहुत ही उर्वरा फर्टाइल है, जिसके चलते वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा होती है एंड द पीपल आर लिविंग देयर। द फर्टाइल सॉइल, presence of many rivers and favorable climate and the availability of flat terrain have made this region one of the most densely populated area of the world। ये एरिया कैसा है, ये एरिया पूरा प्लेन है और प्लेन होने की वजह से और यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वह भी बहुत ही अच्छी है, फेवरेबल क्लाइमेट है, न ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा ठंडी है, न ज़्यादा बारिश है। दस people prefer to live in this area and due to plain so many development took place about the infrastructure of the area। so these are the questions of land and people। so I hope you will understand and thank you very much। I would like to again request from you, subscribe and click on bell icon, like, share and comment about this video। thank you very much you all।